we are going to understand about the license examination and importance of license examination. One thing आपको सबको समझना होगा, MBBS as a field में degree does not mean you can practice. Okay, तो ये clarity आपको clearly होनी चाहिए. How important and why license exams are so crucial. Okay, so question might be very simple, but I want you to answer. Okay, question बहुत simple है, but इसका answer will actually tell what exactly is on your mind. So quickly I will request if you guys can answer this question for me. So obviously, hey, when you buy a car, you are going to get a license and only then you will drive. That is exactly the situation जो आपको समझना होगा जब आप 25, 30, 40, 50 lakhs के कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हो. अगर डे वन से लाइसेंस एग्जाम की तैयारी नहीं करते, so it's going to be very, very difficult. All right, so it's very important that we need to prepare for the license examination, because without clearing the license exam you cannot practice. Okay, the Medical Council of India is very, very clear in terms of the expectation and the anticipation. Okay, please understand, last year there was a higher education policy which was announced, under which it has been confirmed that पहले जो बच्चे अब्रॉड जाते थे उनको एक एग्जाम देना पड़ता था, वो है FMGE. Okay, and जो बच्चे इंडिया में MBBS करते थे, if they want to practice only as an MBBS, there was no exam. सिर्फ और सिर्फ PG करना था तो नीट PG की एग्जाम देनी पड़ती थी दोनों को, बच्चे जो अब्रॉड जाते थे और इंडिया वालों. Now with the announcement of the next examination, whether you want to work only as an MBBS or you want to do PG, whether you study from abroad or India, whether you study from government or private college, everything is combined by this one global level of examination. This one examination is a global level examination which works around the license and licensure requirement. Okay, so you have to make sure कि आप इसके लिए तैयार हो, because you have to appear. Without clearing this exam आपको अलाउ नहीं किया जाएगा to practice. प्लीज ये बातों को समझिए. Generally average pass rate of such license exam is currently only 20%. इसका मीनिंग ये है, जब 100 बच्चे हर साल अगर अब्रॉड जाते हैं तो 20% बच्चे ही एक्चुअली डॉक्टर बनते हैं. And unfortunately, due to wrong choice of university, wrong country, and also not starting from day one, the preparation, there are 25,000 such doctors जो abroad गए थे, abroad से वापस आए हैं, but they only have degree, and with the degree you cannot do anything जब तक license exam नहीं clear किया. तो जो किर्गिस्तान गए थे वो तो एजेंट बन गए, दे नेवर बिकेम डॉक्टर. एंड जो बाकी का क्राउड है, वो आइदर फार्मा कंपनी में मार्केटिंग कर रहा है या फिर स्क्राइब, मेडिकल स्क्राइब की नौकरी कर रहा है. इन सिंपल लैंग्वेज कॉल सेंटर में काम कर रहा है. सो यू डिसाइड वेदर यू वांट टू स्पेंड 6 years ऑफ योर लाइफ एंड देन वर्क इन अ कॉल सेंटर, बिकम अ एजेंट और डू मार्केटिंग. नो, राइट? इसीलिए आपको डे वन से लाइसेंस एग्जाम को सीरियसली लेना है. Whenever you decide to join a medical college in India or abroad, from first year you will be preparing for the license examination. Please understand this very, very clearly. Okay, so license exam or preparation of license exam is very, very important from the first year, because आपको समझना होगा why I am stressing on the license examination part. The reason is very, very simple. Whenever you will be approached by any admission agent, okay, whenever you will be approached by any admission agent, agent will only and only try to tell that आप पहले एडमिशन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एडमिशन इंपॉर्टेंट है और बाकी आप ये सब चीजें सेल्फ स्टडी में पढ़ लेना. दिस इज गोइंग टू बी वेरी, वेरी डिफिकल्ट. अगर कोई एजेंट ने अगर आपको बोला कि लाइसेंस एग्जाम इजी है, सेल्फ स्टडी, तो समझ जाओ वो आपका भला नहीं चाहता. अनदर सेट ऑफ एजेंट बोलेंगे, देखो पिछले साल हमने जलालाबाद में प्रोफेसर भेजे थे, हम प्रोफेसर यहाँ से भिजवा देते हैं. कैन यू बिलीव इट? 5 साल का कोर्स है और 7 दिन के लिए प्रोफेसर जाते हैं.
and half of the time these professors are actually going for tourism purpose. उनको तो वहां घूमने मिलता है नया देश, तो how can you expect 7 दिन में वो पूरा का पूरा पोर्शन आपको सिखा देंगे? सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर किसी ने आपको बोला देखो फेसबुक देख लो, हमने जलालाबाद में भेजा था, तो समझ जाने का गड़बड़ क्या है। Then the another problem which everybody faces is the fancy YouTube video। एक fancy YouTube video बनाया जाता है जहां पर आपको कहा जाता है कि पिछले साल के सारे पेपर है, सारे रिकॉर्डिंग है, आप हमारे ऐप पे तैयारी कर लो फ्री में। फ्री में अगर किसी ने आपको बोला तैयारी करो, फ्री का मीनिंग है जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनको मालूम है उन्होंने आपको जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है, तो वैसे भी आप पास नहीं होने वाले हो। तो अगर आप उनके पास वापस जाओगे तो वो कहेंगे हमने एडमिशन तो करवा दिया था और कोर्स तो आपको मैंने फ्री में दिया है, तो फिर किस चार्ज का आप व्हाई आर यू शाउटिंग। तो वो जब भी आपको कोई बोलता है कि हमारे ऐप पे फ्री में तैयारी करो, समझ जाओ जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं। वो चाहते ही है आपका करियर बने ना बने, उनको कमीशन मिल जाए। बी वेरी वेरी केयरफुल विद सच फैंसी यूट्यूब प्रोवाइडर्स, ठीक है। बहुत जरूरी है आपको ऐसे लोगों का पकड़ में आना। आपको समझना होगा अगर कोई भी वीडियो में इंफॉर्मेशन ना देते हुए बस बड़े बड़े कैंपसेस दिखाए, बस बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी दिखाए, तो समझ जाने का व्हाट दे आर ट्राइंग टू केटर। ओके, लेस इंफॉर्मेशन मोर ग्लैमर, ऐसे नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एडमिशन एजेंट्स विल फूल यू। अगर नेक्स्ट टाइम किसी भी एडमिशन एजेंट का कॉल आएगा तो आपको बोलो, आप जहां बोलेंगे हम चले जाएंगे, पहले आप ये काम करो। पहले आप मुझे बताओ क्या आपके पास सोल्यूशन है कि मुझे 5 साल तक आप लाइव लेक्चर दोगे? अगर है तो मुझे डेमो दिखाओ। आप बोलोगे प्रोफेसर भेज देंगे, नहीं चाहिए। आप बोलोगे रिकॉर्डिंग तैयारी पे सुन लो, नहीं चाहिए। टेस्ट प्लेटफॉर्म है क्या आपके पास जो मैं कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर सकूं? क्या आपके पास टेस्ट प्लेटफॉर्म है कि मैं कंटिन्यूस तैयारी कर सकूं? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ स्टडी प्लानर डू यू हैव? ओके, क्या आपके पास स्टडी प्लानर है कि डे 1 से मुझे क्या पढ़ाई करना है वो मुझे पता चले? वैलिडिटी अनलिमिटेड टिल यू क्लियर योर एग्जाम। रिव्यू की पॉसिबिलिटी ऑल थ्रू 5 years यू कैन रिव्यू। वीकनेस आइडेंटिफिकेशन, ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस एंड रेक्टिफिकेशन। क्या आपके पास सॉफ्टवेयर है जो मुझे ये बता पाएगा? क्योंकि वापस उनको रिपीट करना, आप एडमिशन पे फोकस कर रहे हो। मुझे पता है एडमिशन एक छोटी चीज है, मेन तो ये लाइसेंस एग्जाम है। तो आप लाइसेंस एग्जाम के लिए क्या कर रहे हो उसकी बात करो। सो आप जब ये जेन्युइन क्वेश्चन पूछोगे, आपको बता रहा हूं 99% लोग फोन काट देंगे, और अगर किसी ने आपसे बात की तो उसको ये सारे आंसर्स का क्वेश्चन जरूर पूछना, बिकॉज उनको मालूम है आपको सच्चाई पता चल गई है, आप मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे चले गए। तो हाउ डू मोक्ष स्टूडेंट्स प्रिपेयर? लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लिकली। तो मोक्ष के स्टूडेंट्स एकदम सिंपल है। सबके पास एक सॉफ्टवेयर है coaching.mooc16.com, और जितने भी बच्चे हमारे इंडिया की मेडिकल स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाइना की मेडिकल स्कूल में पढ़ रहे हैं, रशिया, यूक्रेन, ऑल अक्रॉस द ग्लोब, all of them are utilizing this common software जहां पर उनको मेडिसिन लाइव सिखाया जाता है। You just have to click on a button and you can see what is the topic, प्रोफेसर कौन है, सब्जेक्ट क्या है, and you attend the live lecture. That is the beauty of the live lectures. Assignments, mock test, जब आपको मन किया आपको रिकॉर्डिंग सुनना है, so you can just click on any particular subject and just watch a recording lecture. These recording lectures इसी तरह से डिजाइन किया है कि आपके लिए लंबा ना हो, आप बोर ना हो। जब आप एक पर्टिकुलर लेक्चर सुन लेते हो, उसके बाद उसी लेक्चर का आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, कोई मिस्टेक से तो रिपोर्ट कर सकते हो और डाउट्स पूछ सकते हो। So in this way, what is the advantage that a student who studies with Moksha has access to the top quality live faculties? They can ask question to, they have access to the entire video library. Plus assessment होता है, क्वेश्चन बैंक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं, करीबन 2 से 2,500 क्वेश्चन उनको दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। On a daily basis they are given questions to practice which they can utilize it so that they are able to get good scores. So almost 2,000-3,000 questions students को दिए जाते हैं to practice on the software. उसके बाद
हमें आइडेंटिफाई होता है कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, वीक है, तो पूरा एनालिटिक्स के बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को बताते हैं किस तरह से आपको आगे पढ़ाई करना है। अल्टीमेटली अगर एग्जाम पास करना है, क्या आपका प्रेडिक्टेड स्कोर रहेगा। सो दिस इज द इंडिजिनियस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी जो सारे बच्चों के पास लाइव रहता है। अगर उनका करियर मेडिसिन में बनाना है, साइकियाट्रिस्ट बनना है, इमरजेंसी मेडिसिन, तो पूरा करियर रोड मैप है। आप एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करियर का भी दिया जाता है। So this is the software which the faculties, which the students of MOOCs use, where 52 weeks throughout the year live lectures बच्चों को दिया जाता है। So this is what आपको clarity होनी चाहिए कि live lectures है तो हम आपके साथ पढ़ेंगे, वरना we are not interested. Make this thing very very clear to the agent whom you are speaking to. ठीक है, उनको clearly बोल दो लाइव लेक्चर्स है तो बात करो, वरना वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो आपको समझना होगा पहले साल से पढ़ाई बहुत जरूरी है। जैसे आपका कोई भी बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है, उसी तरह से एमबीबीएस के ये पहले 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर से MOOCs के प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, उनका फाउंडेशन स्ट्रांग रहता है एंड सिस्टमैटिकली पढ़ाई होती है। एडवांटेज क्या है कि आपको एनाट, बायोकेम और फिजियो में व्हाट इज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी उसकी पता चलती है कि भाई ये स्ट्रक्चर कैसे होता है, केमिकल कैसे होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। बट फिर जैसे सेकेंड और थर्ड ईयर में आते हो तो डिसीज, बॉडी में इश्यू क्या है, पैथोलॉजी में किस वजह से है, माइक्रोबायो, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, उसका ट्रीटमेंट क्या है, फार्माकोलॉजी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट 2-3 इयर्स में आते हैं, जिसके बेसिस पे आप यूएसएमएलई की स्टेप 1 एग्जाम दे सकते हो एंड देन योर क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट्स, जिसके बेसिस पे आप नेक्स्ट की एग्जाम दे पाओगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन क्रिएट होता है। अगर आपने एनएट को अच्छे से नहीं पढ़ा तो सर्जरी के सारे सब्जेक्ट्स आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर आपका फिजियो, पैथो, फार्मैक वीक है तो मेडिसिन के सब्जेक्ट्स वीक हो जाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको समझना होगा। अनफॉर्चुनेटली एजेंट के पास जाओगे तो उनको ये सब कुछ भी आइडिया नहीं है। वो एक ही चीज बोलेंगे, भैया एडमिशन ले लो, कहाँ जाना है, किधर जाना है। आप उनको पूछो क्या कम्युनिटी मेडिसिन हर कंट्री में सेम होता है? अगर नहीं होता तो हर साल इंडिया में क्या हो रहा है वो मुझे कैसा पता चलेगा? एजेंट आपको यहाँ पर छोड़ देगा। ईयर 1 में एडमिशन के बाद वो गायब हो जाएगा। आगे की कहानी आपको अपने आप संभालनी पड़ेगी। आपको बोलेंगे आत्मनिर्भर हो जाओ। बी वेरी वेरी केयरफुल विद सच एजेंट्स। ठीक है, इस तरह से काम नहीं चलता। एमबीबीएस में पूरा सपोर्ट लगता है, इस तरह से कार्यक्रम नहीं चलता। तो आपका प्लानिंग क्लियर होना चाहिए। 40 to 50 लाख बजट है, आप पास करो एग्जाम्स यूएसएमएलई की और फ्री पीजी के लिए रेडी कर लो, पैरेलल टू एमबीबीएस फॉर द नेक्स्ट 5-6 years, पैरेलल टू एमबीबीएस। 20 to 25 बजट है, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट की तैयारी कर लो पैरेलली फॉर नेक्स्ट 5-6 years। अगर यूएसएमएलई नहीं हो पाया, नेक्स्ट नहीं हो पाया, तो बैकअप के लिए पीजी इन जर्मनी भी हम हेल्प करते हैं। बट वी आर देयर टू सपोर्ट यू राइट अप टू पीजी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना करियर प्लान और करियर फ्लो क्लियर होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको समझना होगा। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज 26 जुलाई को आप एग्जाम लिखोगे। एग्जाम भले कितनी अच्छी जाए ना जाए, आपको ये समझना होगा 21 स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर 1 सीट इन इंडिया। 21 स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर 1 सीट इन इंडिया। तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज द इश्यू? सबको सीट नहीं मिलने वाली। तो जिन लोगों को इंडिया नहीं मिलती वो अब्रॉड में गवर्नमेंट में ट्राई करेंगे। इंडिया में नहीं मिला, अब्रॉड में नहीं मिला, तो क्या करोगे? तो आपका प्लान क्लियर होना चाहिए। जैसे मोहिनी मैम ने बताया, बीएससी कोर्स कर लो, साथ में एनमैट की तैयारी करो, फिलीपींस एमबीबीएस करो और फ्री यूएस चले जाओ। चलो, आपको एक ड्रॉप लेना है, नो प्रॉब्लम, नीट यूजी की भी हम तैयारी करा देंगे। नेक्स्ट ईयर इंडिया में ले लो या फिर अब्रॉड चले जाओ, वो भी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बट आपको क्लैरिटी चाहिए
ये मेरा प्लान बी है। होगा क्या, आप उस समय एकदम डेस्परेट सिचुएशन में हो और आप इजी रास्ता चुनोगे, तो इजी रास्ता की खोज में सडनली आपको फोन आएगा, 1 साल का कोर्स है, 1 साल में फिलीपींस चले जाओ। तभी आप सोचोगे नहीं ये तो इलीगल कोर्स है, और गलती से गलती कर बैठोगे, तो इनसे दूर रहना है। फिर एक कैटेगरी के लोग आपको बोलेंगे 30 लाख में डायरेक्ट अमेरिका पहुंचा देता हूं, 40 लाख में, 50 लाख में। कहां भेजेगा? गयाना। कहां भेजेगा? बारबाडोस, वेस्ट इंडीज की आइलैंड्स पे भेजेगा। और कितना पैसा? 30 लाख में। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी जेन्यूनली कैरिबियन में है, जो ईसीएफएमजी की रेगुलेशन फॉलो करती है, कैम-एचवी फॉलो करती है और यूएस के रोटेशन कराती है, तो उसका फीस 1 करोड़ से कम नहीं हो सकता। बाकी तो आप समझ रहे हो ना, इंडिया में भी ऐसी कितनी सारी बोगस कॉलेजेस होती है। तो आपको उस डेस्परेट सिचुएशन में आपको कॉल आएंगे बैंगलोर से, कोयम्बतूर से, हैदराबाद से। स्पेशली साउथ इंडिया में लोगों को ज्यादा फंसाया जाता है। तो you need to be very very careful. I will not go to Guyana, Barbados, Aruba. कोई भी यूनिवर्सिटी का फीस 1 करोड़ से कम है, आई विल नॉट गो, क्योंकि मुझे मालूम है फंसाने वाला कार्यक्रम है, कोई अप्रूवल नहीं होता, कोई फैसिलिटी नहीं होती। तो सिंपल आपको क्लैरिटी चाहिए। एंड वापस वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप अप्रोच करोगे, एजेंट आपको एक ही चीज बोलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है एडमिशन। एजेंट को बोलो मैंने मोक्ष का वेबिनार अटेंड किया है, मुझे पता है एडमिशन ओनली फर्स्ट स्टेप है। हाउ विल यू हेल्प मी इन माय कॉलेज एग्जाम? हाउ विल यू हेल्प मी गेट माय एमबीबीएस डिग्री? नेक्स्ट लाइसेंस एग्जाम का क्या है? और मेरी पीजी के लिए यूएसएमएलई का क्या है? क्या आप मुझे यहाँ पर कंटिन्यूसली हेल्प करोगे अगले 5 साल 6 साल तक? लिख के दो, लाइव का डेमो दे दो, मुझे प्रूव करो आप ऑलरेडी बच्चे को करवा रहे हो, तो आपके साथ करेंगे। वरना हमें पता है राइट जगह पर कहाँ जाना है, बिकॉज मोक्ष वाले डे 1 से सब कुछ कराते हैं। तो यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चंस सो दैट आप कभी किसी एजेंट के झांसे में फंसोगे नहीं। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर हॉटलाइन नंबर एंड हैव अ कंप्लीट क्लैरिटी। ऑलराइट, आई होप देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन क्लैरिफाई, बट प्लीज मेक दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर। राइट, great. So if there are no questions, I will just wish you all the very best for your you know a NEET examination, and I hope to see you soon on our Moksh live session starting for our MBBS students from 27th of July. Okay, so those who are registered with Moksh, their live sessions will start from very next day of the NEET. Okay, so I wish you all the very best for NEET, and then we will see you soon for our MBBS refresher program. Thank you very much everyone, and I will see you soon on the Moksh platform. Thank you.